ये बैग आपके लिए काम निकाल के रखा है, वो देखें मेरे पीछे खिलारा देख रहे हैं जाने का, ये देख रहे हैं, ये एक और जगह से भी है, एक और जगह से भी नहीं, वो तो मैं उसको वो तो मोची की तरह घर आके बना देना। अच्छा तो इसको मैं उठा के ले ये है, वो दूसरा बैग भी मैंने खाली किया, उसको भी चेक कर ले, वैसे तो वो मुझे सही लग रहा है। जो ले जाने खोल कर रखो, हाँ। वो मोची मेरे सारे मुरीद हैं इधर। तो वो उसको मैं उसने तो बेचारे अपना वो सुई पकड़ना, धागा पकड़ना, उसने इधर पहुंच जाना। चलो फिर मैं सारे एक ही दफा चेक कर एक लूं दफा पहले। चेक करे, उसको मैं आवाज दूंगा, उसने आ जाना घर पे। चलो। लेकिन हो सकता है 2 दिन वो भी ना हो, तो उसको हाँ जी, अभी चेक करो। ये तो करवा लें फॉर श्योर, वो सही है, ये तो उसे कहें आ जाए जब तक मैं दूसरे चेक करवा हाँ, दूं। उसको फिर बुला लेंगे, मैं उसको अभी बोल के आता हूँ। हाँ ये ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप सुनाएं। जी जी, अल्लाह शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ जी, मुबारक हो। शुक्रिया। और तो क्लिप किता हूं मैं क्या सही हाँ, मैं तो बनाऊंगा। बड़ी मुश्किल ना हलाल हुंदा सारे कोल आवाज। गलत बात है। ਉਹ ਚਾਚਾ 에어ਪੋਰਟ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ। बारह पहले मैं तो मैं पूछ ला। हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं वो आइसक्रीम खा देनी या केक। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस ਤੁਹਾਨੂੰ पता। ਮੈਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਖਾਮ ਖਾਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ मेहरबानी करी। ਬਾਕੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਅਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ हाँ ਤੇ ਖਜੂਰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਚਲਾਓ ਵੀ ਆ। 10 तारीख ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਡੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਮੁਹਰਮ ਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ- ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ- ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ पहले ਨਹੀਂ तो मैं कहूँ कहा तो कासुम मैं तेरा मामा लगना। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। असल मामा लगना। ਅਸਲ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸ਼ੁੜੀ ਦੇਖ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ ਕੰਨ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਨ- ਲੱਭੋ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਂਦੀ ਕੋਈ नहीं। अच्छा अच्छा ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ तो बच्ची तो बड़ी अच्छी थी लेकिन माशाल्लाह। ये जो लोगों को मैं ये बता दूं कि अभी सलीम कहने लगे, ये ENT के भी वो हैं और वैसे भी डॉक्टर आदिल जो आसफा के सके मामू हैं सबसे छोटे, ये समझ लो कि उनके जोड़ी वाल घर भी साथ साथ और बचपन से गुरु भी हुए, करीबी दोस्त हैं। तो ये इनका कहना ये था कि मुझे, मैं तो मामू हुआ ना, मेरे को मामू बनाया कर ना तू इनू तू अंकल क्यों कहती है, तू क्यों कहती है, भाई क्यों कहती है, भैया असल बने तेरे मामू है। अच्छा चलो तो वही वो कह रहे थे कि मैंने मामू कहो ज्यादा बेटर है। ठीक है इंशाल्लाह। आज मैं आए हूँ मामू जी से बिल्कुल, चलो शुक्रिया बहुत बहुत। मामू ते आंदे नहीं। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਲੀਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਦਿਲ ਟੋਪੀ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं नहीं अच्छा है। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਭੁੱਲਣਾ हाँ ਨਹੀਂ। पुराना दौर सारा ਇਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। मतलब ठीक हो गया। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ। अच्छा नहीं नहीं मतलब वो पहले ठीक ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਪਹਿਲੇ ਲਓ। ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। नहीं माशाल्लाह। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਦਾ हाँ जी। ਕਿ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਅੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਬਸ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਤੇ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ गुस्सा हो गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अड़ गए तो फिर ਅੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੜ ਪਤਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਅੜੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ। बस अल्लाह का शुक्र है, मेरे नाल अड़ी छड़ती है बाकी ਖੋਤੇ है। ਖੋਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਲੀਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੋਤੇ ਬੜੀ ਅੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਅੜ ਜਾ, ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ अच्छा ਬਸ ਸਲੀਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜੀ ਦਾ ਕੀ ਪੂਨਾ ਕੀ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਦਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ, ਫਾਰੂਕ, ਮੈਂ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੌਕਸ ਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਲਿਫਰੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਸਭ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ। 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਪਕਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਲੀਮ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੇ ਸਲੀਮ ਤੇ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਾਰੂਕ ਵੀ ਜਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ, ਅਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਬਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਨਾ ਮਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, कहते ने स्टूडेंट कहते आप लोग क्या ये धमाधम शोर मचाया, तुम लोग ये कोई तरीका तुम लोगों का क्या नहीं है। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋਕ ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋਕ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜੋਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, तमीज़ करो कुछ, तमीज़ तुम लोग जो है ना मेरे को बिल्कुल वो समझते हो। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਜੋ ਪਾ ਕੇ ਬੈਗ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਏ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਰਾਚੀੋਂ बस से बैठा मीरपुर आ गया, कहना तुम लोग तो मतलब मेरी वो करते हो। मैं कहा देखो यार दोस्तों में इंसल्ट नहीं होती, जोक में जो सामने आ गया, मैंने मजाक में तुमको एक बात कही, तुमने इतना सीरियस हो गया, उन्हें अपना बैग बनाया, मीरपुर आ गया, याद है ना, सब तक मीरपुर पहुंच गया। ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਫਲੈਟ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਟੱਪ ਕੇ ਚੌਥੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਲਪਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੰਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਤਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਫੜ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਫੀਲਡਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡਿੰਗ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ, ਪਹਿਲੋਂ ਫਾਰੂਕ, ਫਿਰ ਆਦਿਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੀਲਡਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੇਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਲੀਮ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਚੌਕ ਲਾਓ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ बड़ा अच्छा टाइम गुजरिया, तो बस चलो अल्लाह का जिन्ना कहेगा, बाकी वो भी अच्छे गुजरा, देख लो आ गया। बाकी भी होर दोस्त किन्ने हैगे आ दुनिया ते, मेरे को घट नहीं हैगे, असल लेकिन ये देख लो असासा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਫਾਰੂਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि निकलेगा वो उन्होंने कहा मजाक कहता है मेरी को बददुआ मेरे को पेट ना खा ले, और तो मैं होता भी हाजी करे आया, तो बोला लकड़ी बड़ी जोर ना, तो किसी ने टाइम काट के शराब वगैरह मिला आज मिले, क्योंकि मामू नहीं आया जितना सलीम खा लो फिर तो मैं घर गया, मैंने कुछ मेरी खिदमत नहीं की थी। अच्छा सही, हां देखो पूरी टेबल भरी भाई, बिल्कुल ज़हन में प्रूफ रखना ਹੁੰਦਾ। हां प्रूफ रखना भाई, सही है सही है। चलो बिस्मिल्लाह, खाना यार चाय पी, कुछ खाना थोड़ा बहुत दे, बस खा ले खाने। आग है आग है आग है, ये वाकई बस अल्लाह रहम करे जो बेचारे जिनके पास साइशें नहीं है, वो कैसे रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कभी ताला जैद के ये महल में कभी ताला लगता है, कभी खुलता है। उज़ैर कहता चला गया पप्पा ये चेंज कर लें। पप्पा पूरी टहनी तोड़नी है क्या करनी है? नहीं पत्ते वाली तोड़नी, और इसका भी तोड़ने का तरीका होता है जो कि मैंने आपकी हाउस हेल्प को भी सिखाया था। मुझे बताओ, इसको ऊपर से काटना होता है ताकि फिर वो नई कोपले निकल आए ना, समझे? तो कैंची से काटो, हाँ भले तेज नाखून से ऐसे ऊपर से ऐसे तोड़ते जाएं, ऐसे करके ना, जैसे ये हाँ ऐसे करके, ये ताकि और वो फिर इसमें फूल नहीं निकलेंगे। जब फूल निकलते हैं तो वो फिर ज़ाया होती है। ये देखें ये फ़ायदा होता है। अब जैद का दिल ख़राब हो रहा था घर में लगी हुई चीज़ का, कि आप पुदीना ताज़ा लें, सौंफ उबालें, तो काफ़ी है ये क्या? और बहुत है ये आपकी 2 कप चाय बन जाएगी इसमें, बहुत है। 2 कप क्या 4 कप बन जाएगी। धो ले अच्छी तरह, इधर कीड़ियाँ कुड़ियाँ बेची उबाल दो। प्रोटीन फ्री का प्रोटीन
नहीं हाँ। 3 का प्रोटीन। और ये देखो, हाँ, ये तो ये पत्ता माशाल्लाह। कितना बड़ा हो गया, देख रही हो? हाँ, ये तो देखें कि आप नहीं, इसको कहते क्या है ये इसको करी पत्ता। करी पत्ता देख लें आप। करी पत्ता, हालांकि जब हम अभी ट्रिप से आए थे तो जब मर रहा था तो फिर हाँ। जैद ने थोड़ी सख्ती की घर वालों, पानी देने वालों पे। तरीका ये बताया मर मैंने क्यों रहा है ये, इसको अब देखें एकदम से बड़ा है, एकदम से बड़ा है। एकदम। वो प्रॉपर पानी और रोज भी नहीं देना होता है। आप ये देखें, जब खुश्क होने लगे तो फिर पानी दे दो। रोज दो गीले पे गीला भी है और उसी में पानी दिया तो वो भी ठीक नहीं होता पौधे और के ये लिए। जैद ने सना के लिए लगवाया था 2 साल पहले। मैं जब आई तो मैंने जैद से कहा सना आएगी तो वो तो खट्टी चीजें खाती, खट्टी दाल, हर जगह में उसने करी पत्ता तो डालना। चलो अभी यूज हो रहा है घर में ये। नहीं तो हाँ, तो वो भी यूज करके गई, सब यूज कर रहे हैं। मैं तो सायरा वालों को कहा सब लेके जाओ यहाँ से। अच्छा, वो चारपाई बेचारियाँ बात इसी ज़मीन पे रखवा दो इनको, ऐसे खड़ी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। और हमारे अब्बू, और अगर ये चारपाई ये जो दौड़ वाला पाथा, इसको दौड़ कहते हैं ना, वो जो वाला अगर कहीं ऊपर कर दिया हाँ। तो बस सख्त नाराज होते थे, बोले ये चारपाई पुट्ठी क्यों खड़ी की थी। अच्छा, वो कहते हैं कि वो अच्छा शगुन नहीं जिसको इस टाइप की कोई चीज़ है। नहीं इस दफा मैंने वैसे सोचा है कुछ चेंज करने का। मैंने सोचा ये चारपाइयाँ change कर लेंगे? नहीं, चारपाइयाँ नहीं चेंज करेंगे, अंदर रखवा देंगे, बजाय बाहर मिट्टी में खराब होती नहीं। हाँ, तो वो एक इतनी स्ट्रांग है। और और फिर सायरा और मैं उठा रहे थे वरना- कल परसों, जब सायरा आई थी तो मैं और सायरा उठा के अंदर ले जा रहे थे तो कहने लगी ये तुम्हारी चारपाइयाँ भी कितनी वजनी है। मैं तो ज्यादा हल्की चीज कोई नहीं लेता, उसने बीवी भी वजनी रखी है। दूर बेटे यार बड़ा जैसे आज वो कह रहे थे ना, वो होता है पुराने लोगों की पुरानी बातें। फिर जैद के दोस्त आए थे, सलीम भाई, वो तो मुझे कह रहे थे मामू को आप मुझे, मैं तो एक्चुअली इन जैद के रिश्तों में कंफ्यूज हूँ, किसको मामू को किसको भाई को। जब वो आते हैं मैं किसी का कुछ भी नहीं कहती। मामू इसलिए कहूँ, उन्होंने तो तुम्हें बिल्कुल छोड़, जैसे आदिल है, आदिल का ये बचपन का दोस्त है। हाँ। और ये बचपन से तुम 2-3 साल की उम्र से तुम लोग जाहिर ये है। देख रहे हो, वो भी मामू तो ये भी मामू। पहले इनको मामू ही कहती थी तुम। हाँ हाँ, जब ये तुम्हारे घर पे उधर नानी के घर पे ये भी आते थे, बैठते थे ना, आदिल भी उधर ही रहता था, नानी के दाहिरा, नानी उसको तुम मामू, वो ये कहता मामू ही कहते। बोला अभी वो उनको समझ नहीं आती क्या कहूँ। अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसको क्या कहूँ, क्योंकि जाहिर है जैद को भी देखती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ जैद के क्लास फेलो हो तो जाहिर है जैद को जैद कहती हूँ, तो समझ से बाहर। मुझसे भी थोड़े सीनियर हैं अच्छा क्लास फेलो नहीं, आदिल और सलीम मुझसे सीनियर है। अच्छा, एक साल 2 साल बस, ऐसा ही है, कोई ज्यादा नहीं। मैंने वीडियो ऑन की कि जैद के आज जो दोस्त आए थे मुबारकबाद देने के लिए, सलीम, वो सलीम भाई, डॉक्टर सलीम मामू, सलीम चाचा, जो मर्जी की तरह। हाँ मामू बनाओ, ज्यादा अच्छे थे। वो बात ये हुई, हमेशा मैं भी बात करती हूँ, जैद भी बात करते हैं, मैं साथ साथ ये भी रख दूँ कि वो सब ये कहते हैं कि वो भी कह रहे थे कि जैद बहुत गुस्से वाला है, जैद को इस तरह वो तो आपको जाहिर गाली है, सुनी। अगर 50 साल से ज्यादा की हमारी दोस्ती है, चलो बचपन की नहीं, लेकिन 50 साल तो फिर भी हो गए। हाँ, तो वो ये बात कर रहे थे कि, लेकिन कह रहे थे फिर वही बात आई कि आसपास ने शादी कैसे चलाई, सब यही कहते हैं कि जैद के भी तेरा कमाल है बस। मेरा कमाल है। तो जैद कहने लगे यार ये पॉइंट ले जाती है हर जगह, तो हंसने लगे। तो फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आदमी को पता होता है कि वो कितना गुस्से वाला है और उसके साथ रहने वाले को। तो मैंने फिर उनके सामने यही कहा कि मैंने कहा फिर लोग ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन जाहिर है जैद जितना गुस्सा दिखाते हैं, जाहिर लोगों के सामने दिखाते भी, मुझसे भी गर्म बोलते हैं, लोग देखते हैं कई दफा एकदम घबरा जाते हैं कि इतनी सख्ती से बोला। वो जैद की एक आदत है, वो इतनी गरमाई में बोलते हैं, लेकिन साउंड बॉक्स में हाँ। हाई पिच, हाई नोट, हाँ, तो लेकिन जैद जितनी जाहिर वही वो कहने लगे कि जाहिर जैद उतनी आपके वो करते होंगे तो ही तो आप बैठी हैं, वरना तो फिर कौन रहता है किसी के साथ, कोई भी नहीं रहता। आज के बैठना नहीं, वरना खड़ी हो जाना। वरना आप वो सलीम का मकसद है, वरना आपने बैठना नहीं था, आपने खड़ी हो जाना था। खड़ी हो जाना था। और अगर खड़ी होती तो आपने कहना था भाईजान मुझे आगे ले जाओ, ये करना था और क्या। तो ये नहीं ले जाओ वाली बातें भी हर घर में होती हैं, ये कोई वो भी नहीं है, अनबने भी होती है सब घरों में। होनी नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ और होनी चाहिए इस बीवी को कभी घर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, घर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो होनी चाहिए ना। अब आप मुझे कहें कि मैं आपको कुछ भी ना कहूँ, या आप परफेक्ट हैं या मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट तो अल्लाह की जात है। देखें आर्गुमेंट अगर बहस और ये तू मैंने अगर मियां बीवी में नहीं होगी, मैं एक वीडियो में कह चुका हूँ
जो बहुत वो फिल्मी झूठ बनते बोलते हैं थे, जो कहते हैं नहीं होती। बड़े फिल्मी बनते थे, उनका अंदाज और तौर तरीका, फिर वो चीज़ें जो है एक दूसरे के खिलाफ जो होती हैं वो जमा होती रहती हैं, फिर वो फटती कब है, फिर सेपरेशन की शक्ल में। और हमारे सामने एक मिसाल है, हमारे अपने अजीज़ हैं, अभी जाके मतलब 66, चलो मेरे से 3-4 साल अगर छोटा तो 65 साल की उम्र में अभी उनकी मियाँ बीवी अलहदा हो गए, सिर्फ इसलिए कुछ ज़्यादा फिल्मी अंदाज था उन लोगों का, फिल्मी बातें वो ज़्यादा करते ऐसे थे, आप सोचें कि उनके वो मेरे हमारे मतलब बहुत करीबी भी कहने जानने वाले थे, अल्लाह तो बस दफा। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उनकी डिवोर्स का, और ये तो नापसंदीदा अमल है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। ये वो अमल है जो कि अल्लाह ताला को वो पसंद। तो ठीक है, लेकिन आखिर कोई तो ऐसा रीजन तो हुआ होगा कोई ना। रीजन ऐसे हुए हैं कि देखे सुन्नी दोनों तरफ की चाहिए। अब हमने जो सुनी एक तरफ की सुनी है, तो एक तरफ से सुनने का मकसद ये है कि अल्लाह बेहतर जाता क्या है, लेकिन वो चलो हमें ऐसे उससे कि मैं चलो छोड़ दो, लेकिन उससे वो topic। ऐसे थे कि आपके घर आए हैं तो आप मियाँ बीवी में वो ऐसे कर देते थे जैसे हम दोनों नफरत करते हैं। हम तो बिल्कुल एक हाँ। किस्म के बेवकूफ टाइप के हाँ। लोग हैं, और हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। तो हमारे यानी जिनके घर जाएंगे उनके सामने भी वही फिल्मी डायलॉग हाँ। एक दूसरे को, मियाँ बीवी को वो मुकालमे फिल्मी, अब मैं क्या, या बच्चे भी देखते हैं मेरी वीडियो, मैं क्या मुकालमे वो सुनाऊं, वो ऐसा प्रेटेंड जिसको हम कहते हैं ना, जाहिर ऐसा करते थे कि हम देखो हम में कितनी मोहब्बत है, और हम प्रेटेंड क्या करते हैं कि देखो हम में कितनी नफरत है। नफरत से मुराद कि हम जो एक्चुअल हैं वही नजर आते हैं, तो फिर कोई सरप्राइज नहीं होता बंदे को। लेकिन आप दिखा कुछ रहे हैं और बाद में ये हुआ, चलो उससे तो 5 ऊपर ही चले गए ना हम, 4-5 साल वो 64-65 में उनकी डिवोर्स हो गई, हम तो बैठे हैं ना अभी। क्योंकि देखें जब वो ये बात वहाँ से चली थी कि जब वो सलीम मामू ने कहा कि नहीं किसी में अच्छाइयाँ भी होती, जैद हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं, जब भी कोई बात हो जाए, इनके घर से हो जाए, मेरे घर से हो जाए, हाँ। तो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। इवन है कि मेरे बच्चों के साथ मैं हालांकि बच्चों की साइड ले लेती हूँ जैद के होते हुए कि नहीं चले, इस वजह से लेती हूँ बच्चों की साइड कि चलो जैद गुस्से ना हो तो मैं फटाफट कर देती हूँ, चलो मैंने कहा है मेरी वजह से हो गया, मैं बच्चों की साइड। लेकिन जैद अगर सुन ले कि किसी बच्चे ने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की, जैद गुस्से बर्दाश्त नहीं होता। बच्चे तो दूर की बात है, वो भाई बहन मेरे भाई करते भी बहुत इज्जत करते हैं, बाबू भाई और जेडी भाई बहुत इज्जत भी इनकी करते हैं, मेरी बहनें भी। लेकिन वो मुझे बल्कि डांटते हैं, आपकी तरह आप लोग भी कहते हैं कि आंटी बहुत तेज है, बस आंटी यहीं पे बोलती है, पूछ ले जैद को, सारा दिन नहीं बोलती, ये पूछ ले, ये जैद गवाह बैठे हैं किचन में है, मैं सारा दिन नहीं बात करती, सिर्फ वीडियो खोलती हूँ उसी वक्त बात करती। बस मेन चीज यही कि अगर कोई की पॉइंट, मुझे कई लोग अब भी कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी वो मेन चीजें बताएं। मेन चीजों में पहला चीज तो यही कि वाइफ के साथ आपका बिहेवियर जैसा मर्जी है। मैं कहता हूं कि लोगों के सामने भी, अगर बहुत सारे कहते नहीं अगर कुछ कहना चाहिए लोगों के सामने नहीं, लोगों के सामने वाकई नहीं कहना चाहिए, नहीं लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए। इसका मतलब है कि आप फिर ये मुनाफिकत कर रहे हो। नहीं, लोगों के ये सामने, लोगों के सुन लो, ये लोगों के सामने नहीं कहते थे ना जिनकी तलाक हुई है, हाँ, ये कितना लोगों के सामने फिल्मी और मोहब्बत वाली बातें, और मैं उनके अंदाज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भी वो किस तरह जाहिर करते थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ। मैं कहता हूँ कि वक्ती तौर पे अगर आपको एकदम कुछ आया, मैं कभी पागल नहीं है, या लोग क्योंकि अपनी वाइफ के किसी लोगों के सामने कोई इस किस्म की इंसल्ट भेजते नहीं, लेकिन ऊंचा थोड़ा बहुत बोल लेना, कुछ कर लेना, वो कोई ऐसा चू नहीं। अगर आपका दिल साफ, अगर दिल ही बेईमान है, मुनाफिकत है, फिर नहीं कह सकते। हाँ, फिर नहीं। मेरा कहना ये है कि आपका रवैया तो, आपका अंदाज तो जो मर्जी है वाइफ पे, आप बाकी आपके घर में से आपके बहन भाई, आपसे मुराद है बंदे के बहन भाई, किसी को ये जरूरत ना हो कि वो वाइफ को वो ऊंचा नीचा कहें, किसी को ये जरूरत ना हो कि आपकी वाइफ के बहन भाइयों को ऊंचा नीचा कहें, आप खुद कह लें। लेकिन भाइयों को बंदे के उनको ये जरूरत ना हो, आप माहौल ऐसा, जरूरत से मुराद है ऐसा माहौल रखें। और दूसरी बात, ये तो मैं कह रहा हूँ शौहर के, मैं कहता हूँ कि शादी के बाद आप अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन इतनी करें कि इनके भाइयों को भी जरूरत नहीं है। एक जमाने में अर्ली नई शादी वो जल्दी तो भूल भी गया होगा, मेरे सामने एक मतलब उसने बदतमीजी से इससे आ गया, जैसे शादी के बाद जाते हैं घर में जाते हैं, उससे कोई बात हुई तो वो भी जरा थोड़ा गुस्से आ रहा, वो तो भूल गया होगा। लेकिन मुझे आज तक वो लफ्ज़ नहीं याद है। तो ना मैंने कहा ये सुन लो, मैंने कहा मैं दोबारा तुम्हारी जुबान से ये अल्फाज अपनी बीवी के कहना, हमारी बहन है, इसमें आपका क्या मसला। मैंने कहा ना, ये बहन तुम्हारी थी, अभी मेरे सामने अगर आपने बोला, मैंने कहा ये बात खराब होगी, भूल गया होगा, बहुत छोटा था उसको, वो इतना बड़ा नहीं था जाहिर है। तो अब ये चीज़ें हैं कि आप किसी को अपनी वाइफ को बुरा ना कहने दें,
कोशिश आप भी करें कि दूसरों के सामने ना कहें, लेकिन वैसे घर में ये हर वक्त ये फिल्मी अंदाज और ये शाहरुख, काजोल और माधुरी और ये ना बन के रहे जैसे लोग करके बताते हैं, बिल्कुल सीधे साधे लोग, सीधे जिस तरह रहे। और वो उसके नुकसान फिर ये होते हैं कि एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है, रिजल्ट क्या निकलता है, चलो ये लगा हुआ। वो इतना अफसोस होता है, दुख होता है हमें भी आज भी कि यार ये कैसे मिलते थे सबके सामने, कैसी बातें करते थे, दूसरों को बोलने भी नहीं देना, उन्होंने अपनी प्यार मोहब्बत की बातें करते रहना, अपनी स्टोरियाँ भी साथ ही सामने शुरू कर दूसरों को कि हम इतने वो हैं। और प्लस कंपेयर ना करें एक दूसरे से। तो आज जब उन्होंने ये बात की ना तो जाहिर है जैद के पुराने दोस्त पुराने वो आज कहने के लगे, हाँ तो जाहिर है जो पुराने जानने वाले होते हैं वो आपकी हकीकत जानते होते हैं, और लंबा इतने साल कितने साल 50 साल की दोस्ती उससे। कैसा उसने कहा कि हमें शुरू से बोला, अब तो मैं कहते हैं कि हमें भी पता है कि ये कैसा है, और आपको भी पता है कि थोड़ी देर का गुस्सा है फिर ठीक हो जाएगा, या कोई बात आप ऐसे ही ना करें। बीवियों को वो कहने लगे चाहिए कि ऐसी बात ना करें जो हस्बैंड को ना पसंद है। तो मैंने कहा आपकी बीवी वो बात नहीं करती, या कोई भी बीवी ऐसी बात नहीं करती जो हस्बैंड को ना पसंद है, वो बीवियां सभी करती हैं। और तो इस वो हंसने करनी लगे, वो फिर बीवी क्या, तुमने कहा फिर वो बीवी क्या जो वो बात ना करे जो शौहर को पसंद नहीं है वही करनी है। और देखिए बीवियां जो रह जाती हैं खाली भाइयों बहनों को कुछ बताते नहीं, माँ बाप रहते नहीं मेरे जैसे हो, तो किसको कंप्लेन करनी है, हस्बैंड को ही करनी है। सुनानी भी हस्बैंड को है, क्योंकि बहू बेटियों को कुछ नहीं कह सकते, बेटियां शादी हो जाती हैं उनको नहीं बताते कि चलो आगे दामाद को ना कुछ पता चल जाए। एक बात मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप समझते हैं कि आपका शौहर, कहते हैं कि आप अपनी बीवी से पूछें कि आप चाहेंगे कि आपके शौहर में जो क्वालिटियां हैं वो आपके दामाद में हो, आपका दामाद वैसा हो। आप अपने घरों में ये क्वेश्चन कीजिए। अगर आपका दिल कहे, जैसे मेरा दिल कहता है, क्योंकि मुझे पता है जैद का, मैं मतलब जो भी हूँ ऊपर से जैसी भी मैं हूँ, लेकिन मुझे अपने शौहर पे इतना यकीन है, और मैं दिल से ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से, और मैंने खाने काबा में भी की थी कि या अल्लाह जैसा जैद का दिल है वैसा दिल मेरे दामाद को देना, जो मेरी बेटी का, चाहे वो पास है या नहीं है, वो फिर भी फिक्र करता है। ये मैं चाहे पास हूँ जैद के कि नहीं हूँ, लेकिन जैद को फिक्र होती है, या बच्चों को बताना करना, या कभी भी जैद पहले आते रहे तो बच्चों को नसीहत करके आते थे कि मम्मा का ख्याल रखना, हालांकि बच्चे तो सोच छोटे थे। तो ये जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद रखता है रिश्ता ऐसा है, तो फिर अगर आपकी बीवी ये कह दे आपको कि मेरी बेटी का भी शौहर ऐसा हो, तो फिर आप समझे कि आप कामयाब शौहर हैं। और ये किसी ने बहुत अच्छी बात क्योंकि अगर वाइफ ये ख्वाहिश करे कि मेरी बेटी का शौहर भी ऐसा हो जैसा मेरा शौहर है, बिल्कुल, यानी जैसे बेटी का बाप है, ऐसी आदात का वो, तो इसका मतलब वो अच्छा ही है। तो हाँ बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको फ्यूचर में समझ में आती हैं, शादी के अगली एज में नहीं समझ में आती है, उस वक्त सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, आखिर तक होती है। मैं तो कहती हूँ अभी तो लड़के हटे हम, मैं और जैद अभी आधे घंटे पहले लड़के हटे, फूड वाला लेट हो गया था, जैद ने उसको सुनाई, मैंने कहा क्यों सुना रहे हैं उसको, नहीं सुना है उसको। भी फिर वही एंड में यही करो कि बीवी को कोई आपके अलावा कोई दूसरा उसको हाँ बीवी के माँ बाप को वो एक डिफरेंट कहानी, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, आपके माँ बाप वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। ज्यादती ना करें किसी का भी, मेरे माँ बाप भी, यानी किसी का भी माँ बाप अपनी बहू पे ज्यादती ना करें, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन चलो चलिए थोड़ा बहुत अगर वो कह लेते हैं तो बाकी किसी। अच्छा इसी तरह जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने बेटी को सख्ती से डांटा, मैंने कहा दोबारा मैं ये ना सुनूं अगर तुमने मेरे सामने, हाँ जब वो अकेली तुम्हारे घर में तुम्हारे पास आई हुई है, कुछ दिन रहने के लिए आई हुई है तुम्हारे घर में, फिर तुम्हारी पहले तुमने जो बोलो मेरे सामने अगर बोला ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद से आज ये दिन है कि कभी मेरे सामने वो, कभी उसको गुस्सा किसी बात पे चढ़ता भी, अभी भी वो भी मेरी तरह तुम करके फिर वो फौरन रियलाइज करता है। मुझे फिर बाद में स्पेशली भाईजान या जेदी फोन करेंगे कि तुमने ये जैद को क्यों कहा, मैं कहा यार वो कहता है कि तुमसे बात करो, तुम तड़ा से बात करो, तुम लोग को क्यों नहीं समझ। अभी तक कल परसों भी भाईजान कह रहे थे यार ये जो तुम करके बात करते हो अच्छा लगता है, खास तौर पे हमारे सामने नहीं। क्यों, मैंने कहा भाईजान आपको 1000 दफा तो बताया है कि जैद नहीं कहा हुआ है, मैं क्या करूं, मैं तुम और आपके चक्करों में फंसी रहती हूं। भी ऐसे कहते हैं तुम्हारे, वो तो भी ये आप लोग नहीं समझा करें कि मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ। आप लोग बहुत रूड हो जाते हैं कई दफा कि आंटी बदतमीज है। आंटी बदतमीज नहीं, आंटी को बदतमीज अंकल ने किया है। आंटी बदतमीज नहीं, आंटी महाबदतमीज चाय मेरी बनाओ बेटा, मेरा गर्मी लग रही है अंदर। हाँ खराब करें करते हैं इसको। ये बड़ी अच्छी डिस्कशन थी और बड़ी काम की डिस्कशन, इसको आप यूं इग्नोर ना करें, बड़े गौर से सुने। मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े पते की बातें हैं, बड़े जो आज 37-38 साल हमारे हो गए,
बावजूद इसके कि हर आदमी, कोई एक वोट नहीं है मेरा जो ये कहे कि ये जो शादी अभी तक जो चल रही है तो इसमें जैद का कोई 1% भी कोई हिस्सा है। वो कहते हैं नहीं, ये सब आसफा का वो हिस्सा है। लेकिन आसफा से पूछो, वो अपने अलावा वो इसका क्रेडिट मुझे देती है कि मैं जिस तरह मेरा बिहेवियर है घर में, एक आम बंदों के आम मर्दों की तरह नहीं है। चलो फिल्मी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन वो भी नहीं हूँ मैं। वो लाई लग उसने कहा पीछे पड़ गया, भाई ने कहा तो बीवी के पीछे पड़ गया, बहन ने वो उसको चूंदर लगा दी तो बीवी के पीछे पड़ गया, और उसने माँ ने थोड़ा सा पड़ गया तो पड़ गया बाप। तो मैं उनमें से कम नहीं हूँ। तो इसलिए आज देख लो 36-37 साल हो गए हमें, खुदा का शुक्र है, लड़ते लड़ते। और हमें अभी फिक्र तो ये रहती है ऐसा ना हो कि अब आइंदा लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। लड़ाई तो अभी तो बताया, अभी लड़ाई कर रही हूँ मैं। मुझे गुस्सा एक्चुअली आज, अब जो मेरा ब्लड प्रेशर है ना, लेकिन करो वो ऐसा चढ़ता है, और ये कहते हैं जो दिमाग की नसें फटती हैं, और ये ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलता, ऐसे चढ़ता है। और उसमें देखिए कोई जानबूझ के नहीं करता, कोई कुछ। जैद बीच में करते थे, अब जैद को समझ लग गई कि ब्लड प्रेशर एकदम चढ़ता है, तो अब नहीं कहते, अब नहीं कहते। नमक नहीं खाओ, गोली प्रॉपर खाओ। पहले जैद कहते थे नहीं मुझे नहीं किया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, ये वो, मैं जरा सी बात करूँ। लेकिन अब जैद को समझ में आ गई। जैद को एक्चुअली कई बातों की समझ में नहीं लगती औरतों की, हार्मोन्स ये वो, पर ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है लेडीज का आफ्टर 50, ये बहुत बड़ी चेंजेस आती है, जो कि हमारे बच्चों को पता है, और यहाँ पाकिस्तान में मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को पता है। तो ये पता होना चाहिए आदमियों को, तो औरतों में चेंजेस। बहुत गर्मी होगी। चले आप अंदर जाए, बस करो, अल्लाह हाफिज़।